Good afternoon, everyone. Welcome to your English class. So today we are going to discuss the word meaning question answer of this chapter number 11. The name of this chapter is a talkative tortoise. Okay, so let's start the dictation word of this chapter. Number one is here chatterbox. Yes, CHATTER chatterbox. Chatterbox, which means one who talks very much or talkative, जिसको हम क्या बोलते हैं बातूनी. Second one is here discussed. DISCUSSED. Discussed, which means talked about the matter. किसी के मैटर के बारे में बात करना. Here we use as a word discussed. Number third is here alone. ALONE. Alone means अकेला. Number fourth is here starvation. STARVATION. Starvation, which means the state of without eating food. Clear? Next one is here beaks. Yes, beaks, you know about the beaks, जिसको हम क्या बोलते हैं चोंच. Yes, long pointed mouth of birds. Now number 6 is here talkative. 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 Yes, talkative means here speak too much. जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातें करता है, जिसको हम बातों नहीं बोलते हैं, वो क्या है talkative. Number 8 is here strange. STRANGE. Strange, which means not common, या we can say as unfamiliar. Okay, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विचित्र. Okay. Number 9 is here scene. SCENE. Scene means दृश्य. Number 10 is here foolish. 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 Foolish means unwise. Okay. Next is here word meaning of this chapter. Let's start. Number one is here chatterbox, which means one who speaks too much. जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसी को हम क्या बोलते हैं chatterbox. Number second is here pond. POND. Pond, which means a small area of fresh water. Okay. Number third is here starvation, which means suffering or death caused by lack of food. क्या food की कमी होने से इसको हम क्या बोलते हैं starvation, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूखमरी. Number 4 is here strange, which means not common, जिसको अभी जैसे अभी बताया था आपको unfamiliar. Okay, विचित्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं strange. Number 5th is here foolish, which means unwise, है ना. So here we use as a word foolish, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मूर्ख. Now let's start the activity 1 of this chapter. Choose the correct alternative. Okay, number 1 is here the cranes and the tortoise were worried about. किसके बारे में worried थे crane और tortoise? Big lake. Second one is here stick. Number third is here dying pond and number fourth is here village. Yes, they are worried about trying ponds, क्योंकि उनके जो pond का जो पानी सूख रहा था इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थे. Number second is here who spoke too much. कौन बहुत ज्यादा बोलता था? Villagers, cranes, tortoise and all of them. Yes, correct one is here tortoise. Okay, वो क्या था? बहुत ज्यादा chatterbox था, बहुत ज्यादा बोलता था. Now let's start the B part. See whether the following statements are true or false. Number 1 is here tortoise help the cranes. Tortoise can help the crane. Tortoise ने crane की help करी थी या crane ने tortoise की help करी थी? Yes, it is false, क्योंकि जो answer है कि crane ने tortoise की help करी थी. Number 2 is here the pond started to dry as there was no rain. Okay, यस इट इज ट्रू. ये क्या है? सही है, क्योंकि जो पॉन्ड है वो क्या होने लग गया था? ड्राई होने लग गया था, क्योंकि रेन नहीं हो रही थी. नंबर थर्ड इज हियर द टॉर्टोइस हैड द स्टिक एट द वन एंड. क्या जो टॉर्टोइस था उसने जो स्टिक है उसको एक एंड से पकड़ा हुआ था? नो, इट इज फॉल्स. व्हाई इट इज फॉल्स बेटा? बिकॉज टॉर्टोइस हैड द स्टिक एट द मिडल ऑफ द स्टिक. मतलब जो मिडल पार्ट था स्टिक का वही पकड़ रखा था. नंबर 4 इज हियर पीपल इन द विलेज वर फुलिश. जो विलेज के लोग थे वो फुलिश थे? नो, इट इज फॉल्स. Number 5 is here the tortoise kept his mouth shut and reached the big lake. No, it is false. Tortoise ने अपना माउथ बंद नहीं किया था और वो बीच में ही गिर गया था और मर गया था, है ना. So now it is false. Number 6 is here we should think before saying something. Yes, it is true कि हमको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए. Clear? Now answer the following questions. Now let's start the question number 1. Who helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake? किसने हेल्प करी थी टर्टल्स की इस पॉन्ड से लेके उसके बिग लेक तक ले जाने की? नाउ द आंसर इज
two cranes helped the turtle in taking him from the pond the big lake. Clear? किसने मदद करी थी? Yes, मदद करी थी, दो क्रेन्स ने उसकी मदद करी थी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, I have an idea. Who said this and what was the idea? तो ये मेरे पास एक आइडिया है, ये किसने कहा? And what was the idea? और आइडिया, उसका जो आइडिया था क्या था? Now answer is tortoise said this. tortoise ने ये कहा, the idea was of flying away to the lake holding a long stick. तो उसका ये आइडिया था, उसके पास एक आइडिया था. आइडिया क्या था कि आप क्या करेंगे, इस लेक पर होल्ड ए लॉन्ग स्टिक. अब जो दो क्रेन थी वो एक तरफ, दोनों तरफ से वो स्टिक को होल्ड करेंगी, है ना, और वो वहां से उड़ के चले जाएंगे. तो और टोटस क्या था? टोटस क्या था? वो बीच से, मिडिल से उसको स्टिक को पकड़ लेगा, है ना. सो नाउ आंसर इज टोटस सेड दिस. ये आइडिया किसने, हु सेड दिस, ये जो लाइन थी वो किसने बोली गई? ये टोटस ने कहा. नाउ द आइडिया वाज, आइडिया क्या था? ऑफ फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक, कि हम यहाँ से उड़ के चले जाएंगे एक स्टिक को पकड़ के. क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई. व्हाई? जो पॉन्ड था वो सूखने शुरू हो गया था, क्यों? द आंसर इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वाज नो रेन. क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, कोई भी बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पॉन्ड क्या होने लग गया था? सूखने लग गया था. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक. देखिए, क्रेन ने, जो टू क्रेन थी, उन्होंने क्या एडवाइस किया था टॉर्टोइस को जब वे उसको बिग लेक की तरफ लेके जा रही थी? आंसर इज द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइस. जो क्रेन ने टॉर्टोइस का एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया? टू कीप हिज माउथ शट, कि अपना मुंह बंद रखना. व्हाइल फ्लाइंग टू द बिग लेक, जब तुम बिग लेक के ऊपर से उड़ रहे होगे तब तुम अपना मुंह बंद रखना. क्यों बोला उन्होंने ऐसे? बिकॉज जो हमारा जो टॉर्टोइस था वो बहुत ही क्या था? टॉकटिव था, चैटरबॉक्स था, है ना, बहुत ज्यादा बोलता था, इसलिए क्रेन ने एडवाइस किया था कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शुड वी टॉक टू मच? क्या हमको बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? अगर हाँ करनी चाहिए तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? द आंसर इज वी शुड नॉट टॉक टू मच. हमको बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट टॉक टू मच. हमको बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. टॉकिंग टू मच इज कंसिडर्ड अ बैड मैनर, कि जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाता है? बैड मैनर, कि उसमें क्या है? बैड मैनर्स, की बहुत ज्यादा बोल रहे हैं. सो वी शुड अवॉइड इट. तो इसलिए हमको उसको अवॉइड करना चाहिए. क्लियर इट स्टूडेंट? सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. हमको मैच करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट कॉलम A. Number one is a chatterbox. As you all know about the chatterbox, as we use as a word, as a talkative, speak too much. Yes, the answer is one who talks too much. जो बहुत ज्यादा बोलता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? Chatterbox. Second one is a starvation. Starvation, which means the state of without eating food. Clear? Number third is here idea. Idea, which means here we use as a thought. Thought means which are here. Number fourth is here foolish. Okay, foolish you have to match unwise, जो बुद्धिमान नहीं है. Having no wisdom, है ना, उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं foolish को? मूर्ख, है ना. Number fifth is here beak. Beak क्या होते हैं? A long mouth of birds. Number sixth is here earth. Earth here land, we use as a earth as a land. This is also synonym. Number seventh is here rain. Okay, rain, water drops falling from the clouds. जो clouds से जो water drops, जो water गिरता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? rain. Number 8 is here stick. Yes, stick, which means इसको हमको match करना है stick को, a long thin piece of wood. Clear student? So you have to match up. Now let's start the activity third, which is a very important activity of this chapter. Yes, look at the sentences given below from the text and understand their meanings. तो सबसे पहले हम sentences देखेंगे और उसको meaning को समझेंगे. Number one is here, we will die of starvation. कि हम starvation मतलब भूखमरी से मर जाएंगे. Second one, that foolish tortoise will certainly fall off. ये foolish जो tortoise है, ये मूर्ख जो कछुआ है, वो निश्चित रूप से गिर जाएगा.
नंबर थर्ड, आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, मैं ये फुलिश थिंग नहीं करूंगा, है ना, करूंगा। तो आपने देखा इन द अबव सेंटेंसेस विल शैल हैज बीन यूज्ड टू से अबाउट एक्शन, अंडरलाइन द वर्ड एक्शन, व्हिच विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर के लिए हम बता रहे हैं कि जो बात होगी फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में होगी, तो हियर वी यूज विल और शैल। सो वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम एक्टिविटी यूजिंग विल और शैल। जब हम फ्यूचर टाइम एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल। Clear? This is a future tense we use as a will or shall. Yes, you know the structure of future indefinite tense. Here we can say simple future tense. Yes, subject plus will oblique shall plus v1 verb की first form plus object. Yes, okay. So now student, generally shall is used with I और v. देखिए जो shall है हम use करते हैं किसके साथ, I और v के साथ, and will with other person like you, he, she, it, they and names. और will हम use करते हैं किसके साथ, he, she, it, they. जो rest of the है, जो हमारा जो other जो हमारे persons है उसके साथ हम क्या use करते हैं, will use करते हैं। Now in modern English will is used very largely. जो अब हम modern English पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो will है वो बहुत ज्यादा यूज आता है। देखिए अगर हम I और V के साथ भी अगर हम will यूज करेंगे तो वो भी इनकरेक्ट नहीं होगा, वो भी क्या होता है, करेक्ट ही होता है। ओके, सो इन modals we also use as a will. यस, आपको पता है modals में भी हम will यूज करते हैं, will, would. यस, ओके, तो जनरली आज मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या यूज कर रहे हैं, will ही यूज करते हैं। क्लियर? Now, fill in the blanks with verb using will or shall. Clear? Let's start. Number one is here, I dash study in class 6 next year. में अगले साल, देखिए अगले साल की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, फ्यूचर में होगा, है ना, तो उसके लिए हम will और shall यूज करते हैं। तो I और V के साथ हम shall यूज करेंगे और अदर पर्सन है उसके साथ हम will यूज करेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, will और shall के साथ। क्लियर? यस, आई शैल स्टडी इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर। सेकंड वन इज हियर, इंडिया। इंडिया, अब देखिए अदर बात कर रहे हैं आई और वी के साथ तो shall यूज कर रहे हो, इंडिया है तो हमारी कंट्री का नेम है तो वी यूज एज अ विल बी। इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि 2025 में हमारा जो इंडिया है वो क्या बन जाएगा, सुपर पावर। नंबर थर्ड, विराट कोहली डैश लीड इज ए वर्ब इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। तो विराट कोहली क्या करेंगे, विल लीड करेंगे। तो विराट कोहली के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, एज अ विल, और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लीड। ओके, इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र धोनी। नंबर फोर, तानिया डैश बाय अ न्यू पेन टुमारो। टुमारो से आइडेंटिफाई हो गया, फ्यूचर की बात चल रही है, तो तानिया के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल और शैल। यस, वी यूज विल। तो तानिया विल बाय अ न्यू पेन टुमारो। Number fifth is here, you dash learn about many invention in near future. तो you will learn, you के साथ आप क्या यूज करेंगे, you shall यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे will। तो you will verb की first form, learn, you will learn about many invention in near future. Clear? So these are the activities of your chapter. Now let's start the comprehension passage of this chapter. Yes, you all know about the comprehension. So in the board exam, the seen and unseen passage will come. Okay, so according to this chapter, this passage will come in this chapter. ये जो passage है इसी chapter से लिया गया है. Okay, so let's start the passage number 1. Long ago, there were two cranes named Sankat and Vikat, and tortoise named कम्बुग्रीवा। देखिए दो नेम, बहुत समय पहले की बात है कि दो क्रेन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सारस, उनके क्या नाम है, संकट और विकट। तो और जो टर्टस है उसका क्या नेम है, कम्बुग्रीवा। ठीक है, दे वर गुड फ्रेंड्स, वे आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। दे लिव नियर अ पॉन्ड, वे कहां पर रहते थे, पॉन्ड के नियर, मतलब पास में रहते थे। कम्बुग्रीवा वाज अ चैटरबॉक्स, जो कम्बुग्रीवा था वो बहुत ही बातूनी था, मतलब मींस टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बातें करता था। वन ईयर देयर वाज नो रेन,
एक बार मतलब एक साल की बात है कि वहां पर बारिश नहीं हुई, सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, और जो पॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या करने लगा, सूखने लगा। द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। जो क्रेन है, जो सारस है, जो कछुआ है, वो उसके बारे में चिंतित हो गए और उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि इस साल तो बारिश ही नहीं है और जो पॉन्ड है वो सूखता जा रहा है, तो वो सरवाइव कैसे करेंगे उस पॉन्ड में, है ना। तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, टू क्रेन्स, द पॉन्ड, कम्बुक रिवर, टू क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस। यस, आंसर इज नंबर जी, टू क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द नेम्स ऑफ क्रेन। अब देखिए सेकंड लाइन में देख दिए कि हैं क्रेन्स नेम संकट एंड विकट, तो ये है टू राइट द नेम्स ऑफ क्रेन्स वर संकट एंड विकट। क्वेश्चन नंबर 3, who were good friends, कौन अच्छे मित्र थे। yes, the answer is the cranes and turtles were good friends. Clear? Number 4, where did they live, वे कहाँ पर रहते थे। yes, they lived near a pond, वो pond के पास में रहते थे। now question number 5, who was a chatterbox। yes, one who speak too much। yes, Kambugriva was a chatterbox, सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन था, Kambugriva। yes, so these are the answer of this question. Now let's start the passage number 2. The cranes brought a long stick and held it with their beaks। जो क्रेन है वो एक लॉन्ग बड़ी सारी स्टिक लेके आए और उसको पकड़ लिया किससे, अपनी बीक से। The tortoise held it in the middle, और टॉर्टस ने उसको मिडिल से पकड़ लिया। सो दे फ्लू ओवर द फील्ड्स, तो वो जो फील्ड्स के ऊपर से वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। एंड विलेज, मतलब फील्ड्स और विलेज के ऊपर से वो क्या कर रहे थे, फ्लू कर रहे थे। द विलेजर्स लाफ्ड वाचिंग सच अ स्ट्रेंज सीन एंड शाउटेड। जो भी विलेजर्स गांव के जो लोग थे वो देखा उन्होंने उस चीज को स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मींस आपको पता है ना, अनफैमिलियर, मतलब उस अजीब सा दृश्य को उन्होंने देखा और वह चिल्लाने लगे। यस, एंड शाउटेड, और वो चिल्लाने लगे। नाउ क्वेश्चन इज द पैसेज इज अबाउट, आपको क्या करना है, इस पैसेज के बारे में बताना है कि जो 5 लाइंस है गिवन है उसी में बताना है कि पैसेज किसके बारे में है। द फील्ड्स, a village, a long stick, a strange scene। तो ये पैसेज किसके बारे में है, a strange scene के बारे में। what did the cranes bring with their beaks। तो जो क्रेन्स है उन वो बीक्स, उनके जो बीक्स में वो क्या लेके आई थी। yes, the cranes brought a stick with their beaks। जो क्रेन्स है वो क्या लेके आई थी, brought a stick, एक स्टिक, एक लकड़ी लेके आई थी, है ना। now question number 3, how did the tortoise hold the stick। tortoise ने स्टिक को कैसे होल्ड किया। tortoise held the stick टाइटली इन द मिडिल, मिडिल से बहुत कष्ट से उसने टाइटली उसने स्टिक को हेल्ड किया। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड दे फ्लाई ओवर। अब देखिए कि वो कैसे ऊपर से उड़ रहे थे। सो दे फ्लू ओवर द फील्ड्स एंड विलेज। तो वो वेयर मतलब कहाँ से वो उड़ रहे थे, वो विलेज के ऊपर से और वो फील्ड के ऊपर से क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये चैप्टर के बारे में है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।